I'll welcome formally Amit Meena from batch ICS June 2020 batch, first batch of COVID. Now over to Ed, sir. Hello. At 24, he is IS, and that is the age one should be. And that's why I will advise you that don't take more than 2 attempts. He wasted 1 attempt on COVID immediately after that. So on a way you can say it was first attempt. After that, first attempt revenue, second attempt IS. I told you. Just 2 attempts, first attempt should be your best. That is the way. So, to welcome Amit sir, citizenship begins at home. The memento that we have, and previously we used to gift back. This is the 1 rupee coin that we already give, just 100 years old or more. But till last year we had only IS, IPS, IFS from general category. This year's form we have decided that from all categories, anybody who becomes IS, IPS, IFS will get the feedback. And one thing that we tell you is that I have not told you. Anytime in your life I can seek 1 month salary from you. I need for my school. School is more important. So, Sarji, ठीक है ना? हाँ सर. This book, our latest launch, I think that will be most crucial for 25 and 26 IES. You will be getting it, of course, but those who are not members of the institute, they will need it. Thank you, sir. Now he will share his experiences, and I have told him in particular that why you needed 3 attempts. जो कमियां टॉपर्स करते हैं वो कमियां आप लोगों ने रिपीट नहीं करनी है, बाकी चाहे जो मर्जी गलतियां एडिशनली कर लेना, ठीक है ना? इस चीज को ध्यान में रखो. ऑफ कोर्स ही विल बी टॉकिंग अबाउट हिज स्ट्रेटजी, हिज पॉजिटिव पॉइंट्स, एंड एज मच एज यू कैन एक्सपेक्ट. हालांकि पतले दुबले हैं बट स्टिल विद इन लिमिट्स है, ठीक है? प्लीज सर कंटिन्यू. Hello everyone, I am Amit Meena. I secured rank 320 this time, and this was my 3rd attempt. I'll start by telling that I graduated from IIT Delhi from Civil Engineering 2022 batch. I gave my first attempt in 2022 and I went to the interview stage, but I did not qualify the cutoff by 2 marks. In my second attempt, I secured rank 903 and I got the Indian Revenue Service Customs and Indirect Taxes, and this was my 3rd attempt. So I'll start by telling that I started preparing for UPSC around my I'd say the 4th year, that is the last year. I did take classes for anthropology earlier because I wanted to understand the subject so as to choose it as optional, but my complete studies around GS and optional started in my 4th year, and I did not get much time because it was COVID period and I was in my home and no one wants to study at home. So there was a lot of inertia starting the preparation, but I gradually picked up the books. GS खत्म किया कैसे भी करके, एंथ्रो रिवाइज किया थोड़ा सा, सर के जो नोट्स थे, क्लास नोट्स थे, वो रिवाइज किए. उसके बाद में सर के क्लासेस बार बार अटेंड करते रहता था मैं. बीच बीच में सर के नए बैचेस चलते थे, वी कैन ज्वाइन देम, तो मैं वीडियो लेक्चर्स देखते रहता था ताकि रिवाइज होते रहे. उसके बाद जैसे ही जनवरी स्टार्ट हुआ, प्रीलिम्स का स्टार्ट करना चालू किया, उस टाइम पे मेरे को कॉलेज जाना पड़ गया क्योंकि एक लैब बची हुई थी हमारी, तो उस टाइम पे मेंस का प्रिपरेशन उतना हो नहीं पाया था. तो जब जैसे ही प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो सबसे बड़ी गलती जो थी मेरे को रियलाइज हुई कि सर भी बोलते थे कि मेंस पहले प्रिपेयर करना होता है, प्रीलिम्स के लिए बाद में पढ़ना होता है, लेकिन मेंस के लिए पढ़ना बहुत मुश्किल होता है. इतना इनर्शिया रहता है कि आप कभी एक आंसर भी नहीं लिखना चाहते बिना देखे. तो कि जब तक आप आंसर लिखोगे नहीं खुद से, पॉइंट्स खुद से जनरेट नहीं करोगे, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करोगे, एक टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि मेंस कितना मुश्किल है. और लेकिन जब आप समझ जाते हो ना कि मेंस कितना मुश्किल है या कैसे करना है उसको, उसके बाद आपको पता चल जाता है कि भाई क्या गलतियां कर रहा हूँ मैं, कैसे करना है. लेकिन मेरे को फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत टाइम लग गया ये समझने में. मैं स्टार्ट किया, आंसर्स लिखना स्टार्ट किया, तो मेरे से हो नहीं रहा था. तो आई टुक द हेल्प ऑफ मॉडल आंसर्स जो होते हैं. सर मना करते हैं हमेशा कि मॉडल आंसर्स मत देखो, कुछ नहीं होता मॉडल आंसर्स, लेकिन इनर्शिया इतना था कि मैंने मॉडल आंसर्स खोले, मैं देखता था, उनको पढ़ता था और फिर पॉइंट्स बना बना के लिखने लगता था. लेकिन जब सिमुलेशन देने गया मैं कि ऑफलाइन सेंटर पे जाके टेस्ट दे रहे हो, तब मुझे पता चला ना तो मेरे से टाइम में पेपर कंप्लीट हो रहा है, ना ही मेरे से पॉइंट्स जनरेट हो रहे हैं, और ना मैं एग्जाम्पल्स लिख पा रहा हूँ. तो मेरे पास 20-25 दिन बचे होंगे
अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि यार करूँ क्या, क्योंकि मेरे से तो पेपर ही कंप्लीट नहीं हो रहा, बाकी चीज़ें तो बात की बात है। देन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन कि भाई अब समझ में आ गया, अब कीवर्ड्स याद करना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी पॉइंट्स हम बना सकते हैं उन पे फोकस रखना है, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है कि भाई ये होगा वो होगा, टेंशन नहीं लेना है। तो आई बस कॉन्फिडेंट कि जब मैं मेंस देने गया कि कुछ नहीं तो एटलीस्ट मैंने अपना लास्ट में जितना भी मेरे पास टाइम था आई प्रिपेयर्ड माई बेस्ट। और एंथ्रो में ऐसा किया था मैंने कि सर बोलते हैं कि 1 वीक रहता है तो आप 2-3 बार रिवाइज कर सकते हो जब बीच में गैप मिलता है, तो एंथ्रो के साथ यही किया था मैंने। एक रफ कॉपी उठाई, जो भी सिलेबस की, जैसे किनशिप हो गया तो अब किनशिप के लिए किसी का डेफिनेशन है तो ये थिंकर हो गया, इसका डेफिनेशन, किनशिप के टाइप्स क्या हैं, रीजंस क्या होता है, डिफरेंट रीजंस हो गए, वो हो गए, तो वो बस मैं एक हब एंड स्पोक डायग्राम बना के रफ में एक्सरसाइज कर लेता था, ताकि जैसे ही एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया है तो सिर्फ उसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आई गॉट 260 मार्क्स इन एंथ्रो, 138 इन पेपर 2 एंड 122 इन पेपर 1। पेपर 1 उस टाइम पे मेरा वीक था क्योंकि थ्योरीज वाला पार्ट उतना अच्छे से कवर नहीं कर रखा था मैंने, और पेपर 2 में उतना मतलब मेरे को भी समझ नहीं आया कि हाउ आई स्कोर्ड 138, लेकिन सर जैसे कराते हैं कि वैसे ही फॉर्मेट फॉलो किया था आंसर्स लिखने का। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरे को जब समझ आया कि यार टाइम पे पेपर खत्म करना है, क्योंकि जब एग्जाम में गया था मैं तो तब भी मेरे से क्वेश्चंस छूटे थे, तो मेरे को पता था कि अगर मैं टाइम पे खत्म करता तो ये जो 2 मार्क्स रहे हैं मेरे कट ऑफ्स निकलने के, अभी मैं ऑलरेडी सर्विस में होता। तो मेरे को तब पता चला कि मार्क्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तब मैंने क्या किया कि मैं डेली आंसर्स लिखने लगा, लेकिन फिर से इनर्शिया आ जाता है। सही बता रहा हूँ मैं कि आप लिखोगे ना आंसर्स, जब आप टेस्ट दोगे, एक दिन में 2 टेस्ट दोगे, तब आपको पता चलेगा कि दिमाग पे कितना जोर पड़ता है, आपके हाथ कितने दर्द करते हैं, तब आपको पता चलेगा कि भाई मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं होता है। तो फिर मैंने ट्राई किया था, लेकिन सेकेंड अटेम्प्ट में भी यही हुआ कि मेरे पास टाइम कम पड़ जाता था एग्जाम में। मैं रहता था कि यार मेरे को 1-2 पॉइंट और आ रहा है, मैं इस आंसर में लिख लेता हूँ, उसके चक्कर में आखिरी में छूट जाता था। और सर हमेशा ये बोलते हैं कि क्वेश्चंस नहीं छोड़ने होते, चाहे तुम 1 पेज कम भर दो, आधा पेज कम भर दो, लेकिन क्वेश्चंस मत छोड़ना। क्वेश्चंस अगर तुम छोड़ रहे हो इसका मतलब है कि तुमने जितने मार्क्स का क्वेश्चन था उसमें से क्या पता तुमको 2-3 मार्क्स मिल जाते अगर तुम कुछ लिखते, लेकिन तुमको कुछ नहीं मिलने वाले। तो फिर ये सेकेंड अटेम्प्ट का केस था कि अब मेरे पास जीएस के स्कोर कम थे, एंथ्रो में आई स्कोर 266, इस बार उल्टा हो गया था, मेरा पेपर 2 खराब गया था, आई स्कोर अराउंड 120 पेपर 2 में, 122 पेपर 2 में और 144 पेपर 1 में। तो थर्ड अटेम्प्ट में मैंने क्या किया कि यार ऐसे का स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ पे ठीक करें। एंथ्रो का स्कोर इंप्रूव करने की जगह थी, तो आई ट्राइड कि एंथ्रो में थोड़ा इंप्रूव करते हैं, और जीएस में बहुत इंप्रूव करने का स्कोप था। आई वाज स्कोरिंग अराउंड 380, मेरा था कि अगर 420 तक हो जाता है तो बहुत सही हो जाएगा। तो मैं डेली आंसर्स लिखने लगा, सुबह 7 बजे उठ के प्रैक्टिस करता था कि यार अब तो करना ही पड़ेगा, अब नहीं किया तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। तो इस बार मैंने टाइम बाउंड मैनर में बहुत प्रैक्टिस करी आंसर्स लिखने की, दोस्तों के साथ बैठ के लिखता था, जितने पॉइंट्स याद आते हैं, जितने एग्जाम्पल्स याद आते हैं सब लिख दो, कीवर्ड्स याद करते रहो कि भाई अगर एग्जाम में कुछ नहीं आ रहा तो इस टॉपिक के ऊपर ये चीज़ तो मैं लिख ही दूंगा। एंड दिस टाइम आई स्कोर्ड अराउंड 422 इन जीएस, जिससे बहुत बड़ा जंप हुआ मेरे स्कोर में। एंथ्रो में इस बार मेरा स्कोर डाउन गया था, आई स्कोर 140 इन पेपर 1, लेकिन पेपर 2 का स्कोर सुन के तुम लोग भी हंसोगे, आई स्कोर्ड ओनली 107, तो 247 था मेरा स्कोर। अब मैं बताता हूँ कि गलती क्या हुई थी पेपर 2 में। पेपर 2 में एक तो थोड़ा सा अनकन्वेंशनल पेपर था, देख के डर गया मैं पहले तो। उसके बाद में जब स्टार्ट किया तो सर बोलते हैं कि तुमको गलत नहीं लिखना होता है, अगर 10 मार्कर है तुमको नहीं आता तो जितना आता उतना लिखो, छोड़ दो। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जैसे आपातानी ट्राइब के बारे में था कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है। अब फिश एंड राइस कल्टीवेशन तो मेरे को पता था, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि वो झूम कल्टीवेशन नहीं प्रैक्टिस करते। मैंने लिख दिया स्लैश एंड बर्न, तो वो गलत है एक। दूसरा एक था मालाबार क्रिश्चियंस के ऊपर था, तो उसमें मेरे को नहीं पता था, लेकिन मैंने क्या किया कि मैं इस माइंडसेट से गया था इस बार कि पेजेस फिल करना सब में, और स्पीड बढ़ गई थी मेरी, तो मैंने उसमें भी लिख दिया। उसके बाद में क्वेश्चन सिलेक्शन जो था, मैंने क्वेश्चंस चूज किए थे, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 था, एक क्वेश्चन था जिसमें शॉर्ट नोट ऑन बिरसा मुंडा लिखना था। वो मैंने सोचा कि यार ये नहीं लिखते, वरना मेरे को वो वाला क्वेश्चन आता था। मैंने सोचा कि यार कुछ और लिखते हैं कि ये बहुत जेनरिक हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन था कि हेल्थ के ऊपर, स्टडीज अबाउट हेल्थ और इम्पैक्ट कैसे हो रहा है, कोविड के बाद कैसे इम्पैक्ट हो रहा है, और हेल्थ केयर सिस्टम इंडिया में कैसा है, वो क्वेश्चन था। अब मैंने क्या किया कि हर क्वेश्चन में एक पॉइंट लिखता है और एक केस स्टडी लिख देता, 2 लाइन की केस स्टडी। मेरे को लगता है ये बैकफायर कर गया, क्योंकि एक्सप्लेन करने की जगह चीज़ों को मैं सिर्फ डंप करते जा रहा था और बहुत मैकेनिकल हो गया था पेपर 2 में। जबकि पेपर 1 में क्या हुआ था कि थ्योरीज वाले जैसे क्वेश्चंस थे
क्योंकि अब क्या हो रहा है कि थ्योरीज से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम लोग ऐसा करते थे कि इग्नोर कर देते थे थ्योरीज को कि सिर्फ यूज करना है। अब हो रहा है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और तुमको अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो थ्योरीज वाला आंसर लिखना पड़ेगा। तो मैं इस बार अच्छे से प्रैक्टिस करके गया था थ्योरीज, और जितना मेरे को समझ आता था खुद के लैंग्वेज में मैंने आंसर्स लिखे थे पेपर 1 में। और फिजिकल वाला पार्ट जितना अटेम्प्ट कर सको, फिजिकल वाला या फॉसिल्स वाला, इजी टू स्कोर है। तुमको अगर याद रहती है या समझ में आती चीजें तो खुद से बना के लिख सकते हो। तो मैंने वो वाले पार्ट अटेम्प्ट किए थे। पेपर 2 में एक और गलती ये हुई थी कि आर्कियोलॉजी वाले क्वेश्चंस कम थे। मैं प्रैक्टिस करके गया था कि आर्कियोलॉजी वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा, लेकिन जो आर्कियोलॉजी वाले क्वेश्चंस आए थे उनमें सेलेक्ट करने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि बाकी आंसर्स आते नहीं थे। तो ये एक चीज होती है कि मतलब ऐसे नहीं सोच के चलना है कि यार मेरे को ये वाला पार्ट नहीं आता है। जैसे मेरे को सोशियो कल्चरल आता है, फिजिकल नहीं आता, तो मैं सोशियो कल्चरल पे फोकस करूंगा। अब तुम क्वेश्चंस देखोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि सारे मिक्स होके आते हैं। एक थ्योरीज का आ जाएगा, एक फॉसिल्स का आ जाएगा, एक फिजिकल का कुछ आ जाएगा। तो ऐसे कर नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग चीजें, अलग अलग सब पार्ट्स पूछ रहे हैं क्वेश्चंस के। तो बेसिकली यही था। मैं तो बस एक ही एडवाइस दूंगा कि इनर्शिया मत रखो मेंस को लेके। तुम लोग अभी तो स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना कि हाँ ठीक है अभी तो जोश रहेगा, लेकिन थोड़े दिनों बाद जैसे ही फिजिकल स्टार्ट होगा या फॉसिल स्टार्ट होंगे, धीरे धीरे स्लो हो जाता है सबका। आर्कियोलॉजी स्टार्ट होगा, फिर साइट्स याद करनी है, कुछ याद नहीं करेगा, कोई आंसर्स लिखना छोड़ देते हैं। हमारे ऑनलाइन बैचेस में तो सर यही हुआ था कि लोगों ने आंसर्स लिखना ही छोड़ दिए थे, प्रैक्टिस ही नहीं करता था कोई। उसी चक्कर में इनर्शिया बहुत था, मेरे को आंसर्स लिखने में बड़ी दिक्कत आई थी। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि आंसर्स लिखते रहो। अगर आपको हेल्प चाहिए, प्रॉपर कॉपीज हैं, अक्षत जैन सर की बुक है। अक्षत जैन सर की बुक से तो आप देखोगे तो सर के कंटेंट ही है मैक्सिमम, जो सर पढ़ाते हैं उसी के बेसिस पे लिखा हुआ है वो। तो तुम देख सकते हो, उससे रेफरेंस ले सकते हो। टॉपर कॉपीज हो गई, नारायण अमित सर के टॉपर कॉपीज हैं, उन्होंने अपने नोट शेयर कर रखे हैं, उनको देखो, उससे समझ में आता है कि कैसे लिखना है। वहां से कंटेंट भी उठा सकते हो। अगर तुम्हें किसी चीज में कंटेंट कम लग रहा है या वैल्यू एडिशन करना है तो वहां से कर लो। बेसिकली यही थी मेरी स्ट्रैटेजी जो मेन थी। अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो। तो जैसे आपने कहा अक्षय जैन सर की बुक एक फुल चैनल मिल रही है, वो सबके पास सब कुछ दिख रहे हैं, तो और क्या ऐड करें उसके अंदर के नंबर अच्छे हैं? देखो पहली बात तो ये है, तुम्हें याद है वो किताब? मेरे पास 3 साल से थी, मेरे को तब भी याद नहीं रहती थी कि क्या लिखा हुआ है। अगर तुम्हें समझ में आया ना क्लास में सर ने क्या पढ़ाया है, अक्षय जैन सर ने वही लिख रखा है कंटेंट। बस तुम्हें ये होना चाहिए कि तुम्हें याद है चीजें और तुम खुद के वर्ड्स में लिख पा रहे हो। तुम जो बोल रहे हो ना कि वो ठीक है कि मतलब सब सेम ही कंटेंट लिखेंगे, तो वैल्यू एडिशन के लिए दूसरी जगह से ढूंढ लो। सर डालते रहते हैं, न्यूज डालते रहते हैं, हम लोग इग्नोर कर देते हैं उसको। सर डेली न्यूज डालते हैं, पहले तो न्यूज़पेपर वाली कटिंग्स डालते थे सर, अब तो अलग से एंथ्रो रिलेटेड न्यूज भी अलग से डालते हैं सर, कि टाइप्ड वाली जो रहती है उसको अलग से। अगर अभी नहीं करना है तो अलग से एक जगह पे डॉक्यूमेंट में सेव करके रख लो उसको। बाद में जब तुम अपडेट करना चाहो ना तो एक दिन बैठ के, हम लोग यही करते थे मेंस के टाइम पे, कि एक दिन बैठ के जितने भी न्यूज सर ने दी है उसको निकालो और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं उसको बस 1-2 लाइन में लिख लो, ताकि एज ए एग्जाम्पल कोट कर सको तुम। तो वही बेसिकली वही रहता है। बाकी कोई क्वेश्चन? सर Excuse me, sir. हेलो सर, मैं पूछ रही थी कि सर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आज मेरा मैरिज टॉपिक कंप्लीट हुआ है, मुझे कॉन्फिडेंट फील हो रहा है कि हाँ हुआ, तो मैं उसको कैसे टेस्ट करूँ कि मतलब कहाँ पे मैं हूँ? देखो एक तो ये है कि जैसे तुमने नोट्स बनाए होंगे ना क्लास में मैरिज के और सर की बुक से पढ़ा होगा, तो अब वो सब बंद करो, क्या क्या टॉपिक्स हैं ये पता करो। कि मैरिज में एक तो डेफिनेशन हो गया, एक नोट्स एंड क्वेरीज का डेफिनेशन है, एक कैथलीन गफ का डेफिनेशन है, ये सब याद करो। उसके बाद सर बताते हैं मर्डॉक ने क्या क्लासिफिकेशन दी थी या उसने क्या बोला था मैरिज के बारे में। उसके बाद में टाइप्स ऑफ मैरिजेस हो गई, उसके बाद में क्या क्या मैरिज पेमेंट्स हैं, ये सब है। तो ये जितने भी चीजें हैं ना, इनको टॉपिक्स को लिखो पहले, और उसके बाद हब एंड स्पोक, जैसे मैं बता रहा था ना रिवाइज करने के लिए, वैसे हब एंड स्पोक बना के अगर तुम लिखोगे ना कि तुम्हें क्या क्या याद है, उससे ज्यादा जल्दी पता चलेगा कि तुम्हें चीजें याद हैं भी सही या तुम्हें बस लग रहा है कि मुझे समझ में आ गया तो मुझे याद है। क्योंकि 2-3 बार ये करने पे पता चल जाएगा कि हाँ यार मेरे को अब याद होने लग गया है, अब मैरिज पेमेंट्स में दिक्कत नहीं आ रही, अब जो भी रूल्स ऑफ रेसिडेंस है या वो है या रूल्स ऑफ मैरिजेस हैं वो सब समझ में आ रहा है। तो वो याद करने के लिए यही बेस्ट तरीका है कि तुम लिख लिख के प्रैक्टिस करो उसको। सर और जब आप आंसर लिखते हो तो आप कैसे इवेलुएट करते हैं, मतलब मैं क्या लिखी हूँ नहीं लिखी हूँ, मतलब कैसे? देखो इसका बेस्ट जज तो वही है कि तुम टॉपर कॉपीज देखो। एक तो पहले फॉर्मेट होना चाहिए कि इंट्रो बॉडी कंक्लूजन है। दूसरा ये है कि मतलब जो क्वेश्चन की डिमांड है वो एड्रेस हो रही है। अगर क्वेश्चन जो पूछा है तुमने उसके बारे में ना लिख के आसपास की चीजें लिख रहे हो तो डिमांड एड्रेस ना करने से तो दिक्कत है। उसके बाद में ये रहता है कि अगर तुमने देखे होंगे ना कि सर भी बताते हैं कि कैसे आंसर्स लिखना है, सर फॉर्मेट भी बताते हैं बहुत सारे आंसर्स का
तो उससे आइडिया लग जाता है। और बेस्ट तरीका तो यही है कि टॉपर कॉपीज तुम ऐसा ट्राई करो कि 3-4 टॉपर्स देखो, मतलब एक टॉपर कॉपीज से नहीं पता चलता, 3-4 टॉपर्स देखो, सबका अलग अलग स्टाइल होता है लिखने का, उससे तुम्हें पता चलेगा कि तुमको कौन सा सूट कर रहा है और उस हिसाब से तुम उठा सकते हो। सर प्रैक्टिस क्वेश्चन आप कहाँ से मतलब सोर्स करते हो प्रैक्टिस के लिए? प्रैक्टिस के लिए तो वैद सर बहुत सारे क्वेश्चंस देते हैं, पहले तो वो कंप्लीट लिख लो, तुम ट्राई करो उसको पूरा कंप्लीट करके चेक करवाने का, उसके बाद में तुम्हें खुद मतलब फिर बाद में करना है तो टेस्ट सीरीज किसी की उठा सकते हो या पीवाईक्यूज कर लो। सबसे जरूरी तो वही है कि एक बार पूरे पीवाईक्यूज जो हैं अगर पूरे भी नहीं लिख रहे हो तो उसके बारे में डिटेल मतलब फॉर्मेट बना लो कि सर बाद में प्रैक्टिस भी ऐसे ही करवाते हैं कि थोड़ा सा टाइम देंगे सर और बोलेंगे इसका फॉर्मेट बनाओ पहले कि ये क्वेश्चन है इसमें क्या क्या ऐड करोगे, क्योंकि डिटेल्स तो तुम ऐड कर सकते हो लेकिन फॉर्मेट क्या रहेगा, क्या क्या चीजें लिखनी है उसमें, वो समझ में आना चाहिए। सर मेरा एक क्वेश्चन था लाइक जो हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं एंड देन वी राइट अ क्वेश्चन, सो हाउ मच दोस क्वेश्चन दैट वी इंक्लूड द डायग्राम मेक्स अ डिफरेंस टू आवर आंसर्स लाइक इन टर्म्स ऑफ मार्क्स? यार एग्जामिनर का माइंडसेट तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जैसे फॉसिल्स है या आर्कियोलॉजिकल साइट्स है तो मैप बना दिए, या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का कुछ है, मेंडल का क्वेश्चन है तो टेबल बना दिया, उससे ये लगता है ना एग्जामिनर को कि हाँ भाई इसको चीज समझ में आ रही है, इसको पता है कि ये किस बारे में लिख रहा है। अगर तुमने फीमर का डायग्राम बना दिया, मेन एप से ह्यूमन इवोल्यूशन में डिफरेंसेस हैं, उसमें जितने डायग्राम्स तुमको याद आ रहे हैं सारे तुमने बना दिए, तो वो लिखने की जगह सर तो यही बोलते हैं कि तुम लिखो मत, बस हेडिंग दे दो और वो डायग्राम से एक्सप्लेन कर दो कि क्या हुआ है, तो वो सीधा समझ में आता है उनको भी कि तुम सिर्फ लिख रहे हो ना, तो वो विजुअल तो है नहीं, लेकिन तुमने डायग्राम बना दिया तो उनको भी पता है कि इसको पता है कि कहाँ से कहाँ इवोल्यूशन हुआ है, तो वो हेल्प तो करता है। लेकिन वही है कि डंप नहीं करना है डायग्राम्स, जहां पे नहीं बनाना है वहां पे मत बनाओ। सर दूसरा क्वेश्चन, जो हम लोग मतलब आंसर्स लिखते हैं, इट्स बेटर टू राइट इन लाइक पॉइंट वाइज, जहाँ पे हम लोग बस मेन पार्ट को मतलब मेन सेंटेंस या मेन वर्ड को हम लोग मतलब कंस्ट्रक्ट करके लिख दिए, रादर देन लाइक राइटिंग लाइक एन एसे, बिकॉज मतलब एग्जामिनर को भी लाइक उतना पढ़ते नहीं, दे जस्ट वांट द कंटेंट, सो वी जस्ट मेंशन द मेन कंटेंट, राइट? बट मेरा क्वेश्चन था सर लाइक दिस वे लाइक वी कुडंट कंप्लीट द वर्ड लिमिट। यार वर्ड लिमिट का टेंशन मत लो, मेरा तो ये कहना है कि मतलब तुम देखो कि तुमने आंसर कंप्लीट किया है क्या। स्पेशली आंसर में तो सर हमेशा यही बोलते हैं कि डिमांड एड्रेस हुई है या नहीं। क्वेश्चन की अगर डिमांड एड्रेस हुई है और आधा पेज छूट गया है, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वर्ड लिमिट की टेंशन तो कभी नहीं लेना है, कोई काउंट नहीं करता वर्ड्स वहां पे। मतलब कुछ लोगों को सही में रहता है कि यार वर्ड लिमिट से अधेर करना है, अनटिल एंड अनलेस तुम बहुत ज्यादा कुछ लिख रहे हो, वर्ड लिमिट्स का उतना टेंशन होता नहीं है। और पॉइंट वाइज फॉर्मेट मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करूंगा कि पॉइंट वाइज लिखो, अनटिल एंड अनलेस तुम्हें उसके बारे में ज्यादा चीजें नहीं पता है, तब तुम्हें एक्सपैंड करना होता है कि यार मेरे को पेज भरना है, तो तुम वो जितना पता है उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। Sir, actually I was asking on the context of the questions that carries like more marks like 25, 20. So वहाँ पे तो थोड़ा बहुत तो difference रहेगा, right? Like word limits का, like हम लोग तो बस content लिख दे तो ऐसा तो मतलब marks भी कम हो जाएगा। अगर हम लोग थोड़ा और उसको explain करके या ये करके लिखे तो उसमें marks मिलने का ज्यादा chance है। या मैं बताता हूँ, 15 मार्कर और 20 मार्कर रहता है ना, फॉर्मेट सेम ही रहता है। अगर वो 10 मार्कर में भी पूछता ना, तुम्हारा फॉर्मेट सेम ही रहता है, बस तुमको चीजें एक्सप्लेन ज्यादा करनी पड़ती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम वे फॉरवर्ड डाल सकते हो। अब ट्राइबल प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन पूछ लिया, 10 मार्कर पूछा और उसने ट्राइबल प्रॉब्लम्स पूछी है, तो तुम ट्राइबल प्रॉब्लम्स इतनी सारी है, वे फॉरवर्ड थोड़ा सा लिखोगे। लेकिन अगर वो 15 या 20 मार्कर आया है तो ट्राइबल प्रॉब्लम्स तुम 2 पेज भर सकते हो। उसके बाद में सजेशंस, कमिटीज, इतनी सारी कमिटीज हैं, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे। अबे बैंक कमेटी होगी हेल्थ को रिलेटेड, बाकी खाका कमेटी, ये सब तो है ही, तो उनको लिख दो, वो है। लेकिन पॉइंट वाइज फॉर्मेट में ही लिखो, उससे विजुअल वो जो रहता है कि हाँ दिख रहा है मेरे को कि ये लिखा हुआ है इसने चीजें, वो बेटर रहता है। और यार तुम अगर पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख रहे हो ना, तो वो ऐसे जैसा ही दिखेगा, आंसर नहीं लगता वो फिर। सर वही मतलब अंडरलाइन करके अगर लिखते हैं तो वो हाँ, वो मतलब मैं तो हमेशा सजेस्ट करूंगा पॉइंट वाइज फॉर्मेट में लिखो, अगर तुम्हें दिक्कत नहीं आ रही है। What's the difference between case studies and examples, sir? यार इसका आंसर तो वैद से ज्यादा अच्छा दे पाएंगे मुझसे। हम तो वही करते हैं जो तुम पूछ रहे हो कि एग्जाम्पल, यही तो मैंने किया था पेपर 2 में कि एग्जाम्पल की जगह पे मैंने केस स्टडी लिख दिया और एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ 1 लाइनर। वो नहीं होता, केस स्टडी एक कंप्लीट स्टडी होती है जो कि एटलीस्ट 4-5 लाइन में जानी चाहिए, कि ताकि पता चले कि
हुआ क्या था, एग्जाम्पल है कि वन लाइनर, जैसे सर न्यूज डालते रहते हैं कि राइट आर्म में एक न्यू आर्टरी डेवलप हो रही है, ह्यूमन एवोल्यूशन है ये, तो ये बस एक एग्जाम्पल है। केस स्टडी तब होगी ना जब तुम्हें कोई प्रॉब्लम है और उसके डिटेल्स पता है तुम्हें कि ये स्टडी करी गई थी और ये डिटेल्स हमें पता चली, तो वो एक ओवरऑल केस स्टडी होती है। यार केस स्टडीज कर सकते हो पेपर 1 में, जैसे वो है फिजिकल एंथ्रो में जो ग्रोथ वाला टॉपिक है, मेरे को याद नहीं आ रहा, मिनेसोटा वाली स्टडीज है, वो केस स्टडीज थी कि अगर बेबीज को अलग अलग हाउसेस में रखा जाए और उनकी ग्रोथ हो तो मेंटल जो कैपेसिटी है वो कितनी चेंज होती है या आईक्यू कितनी चेंज होती है, ये सब स्टडीज केस स्टडीज ही हैं, तो ये सब यूज कर सकते हैं। या फिर हो गया स्पोर्ट्स एंथ्रोपोलॉजी में इंडिया ने कुछ किया है बेस्ड ऑन हाइट एंड वेट मेजरमेंट्स, तो वो सब केस स्टडीज है। हेलो हेलो सर। हाँ। सर ये इतना सिलेबस याद कैसे होता है? या एंथ्रो का सिलेबस तो फिर भी छोटा है भाई। नहीं सर, एंथ्रो का नहीं, मतलब अच्छा। जीएस भी तो देना है, तो जीएस का सिलेबस 4 पेपर, 2 पेपर एंथ्रो, तो इतना सिलेबस याद कैसे होता है? कंटेंट याद करना है या सिलेबस? कंटेंट याद हाँ, करना फिर है, सिलेबस तो याद हो जाएगा। या कंटेंट में तो ऐसा है कि यार तुम पढ़ते रहोगे ना, जीएस तो जैसे तुम बेसिक से स्टार्ट करते हो, लक्ष्मीकांत पढ़ी, स्पेक्ट्रम पढ़ी या एनसीईआरटी से स्टार्ट किया था, तो वैसे तो एक बार तुमको समझ में आने लगता है ना, तो वो उतना याद नहीं करना पड़ता, याद करने पड़ते हैं जो तुम भूल सकते हो फैक्चुअल चीजें, लेकिन कंसेप्चुअल चीजें जैसे हैं पॉलिटी में है, इकोनॉमिक्स में है, साइंस एंड टेक में है, इनमें कंसेप्चुअल है कि तुम्हें समझ में आ गया ना कि चीजें कैसे काम करती हैं, तो फिर वो याद थोड़ी करना है, वो तो समझ में आ ही गया। अब प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर का डिफरेंस तुमको नहीं पता है, वो स्टार्टिंग में होता है, लेकिन 1-2 बार तुमने पढ़ लिया, उसके बाद तुम ना भी पढ़ो तो भी तुम्हें पता रहेगा कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर अलग अलग होते हैं और क्या डिफरेंसेस हैं उनके, तो वो एक चीज है। दूसरा यार जो तुम भूलते हो ना कि तुम्हें एग्जाम्पल्स याद नहीं आ रहे, अगर आंसर्स लिख रहे हो एग्जाम्पल्स याद नहीं आ रहे, फैक्ट्स याद नहीं आ रहे या पॉइंट्स नहीं जनरेट हो रहे, तो एक तरीका तो होता है टेम्पलेट्स का, कि जैसे एग्रीकल्चर का कोई क्वेश्चन है तो उसकी प्रॉब्लम्स लिखनी है, उसके सॉल्यूशन लिखना है, तो इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट सब में ले लो, एक तो लैंड हो गया, एक लैंड हो गया, सीड हो गया, वाटर हो गया, ऐसा ऐसा कर करके तो अपने आप जनरेट कर लोगे पॉइंट्स। दूसरा है कि एग्जाम्पल्स और फैक्ट्स को लेके डायरी बना लो, या तो एक अलग से या नोट्स कर लो, उसको कहीं पे भी नोट कर लो, वो तुम्हें अभी याद नहीं करना है, 1-2 बार देखो उसको। अभी जब तुम आंसर्स लिखने जाते हो ना उसके पहले देख लिया करो, फाइनली तुमको कब याद आना चाहिए, मेंस के टाइम पे। बाकी तो फर्क नहीं पड़ता ना, तुम भूल जाओ तो ठीक है, लेकिन मेंस के टाइम पे तुम्हें याद आना चाहिए कि भाई 2-3 दिन में एग्जाम है, अब मैं सारी चीजें याद कर लेता हूँ। लेकिन वो नहीं होना चाहिए कि भाई तुम एंड में याद कर रहे हो इतने सारे और सारे डाटा और फैक्ट्स उल्टे सीधे कर दिए तुमने, मतलब उतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। बाकी यार सिलेबस बड़ा है लेकिन करना तो पड़ेगा, अब कोई तरीका तो है नहीं। सर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके कोई हवा ही नहीं है, हमें पता ही नहीं कुछ दूर दूर तक, तो क्या करना है उसका? यार छोड़ दो, अगर बिल्कुल नहीं पता तो छोड़ दो, लेकिन ऐसा होता नहीं जीएस में। जीएस में नहीं होता क्योंकि तुम्हें पता होता ना कि कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, एक सीक्वेंस होता है हमेशा, पहले एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर आएगा, फिर मॉडर्न आएगा, फिर ज्योग्राफी आएगा, फिर सोसाइटी आएगी, तो ऐसे करके सारे पेपर्स में होता है ऐसे, तो तुम्हें पता चल ही जाएगा कि कौन से टॉपिक या कौन से सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, उसके बेसिस पे कुछ तो लिख ही सकते हो। अब ट्विस्टर्स आया था लास्ट ईयर, GS1 में आई हैव स्कोर्ड 114, जो कि आई थिंक बहुत अच्छा स्कोर है इस बार, और मेरे को नहीं आता था ना, मेरे को ट्विस्टर्स आता था, एक पाला डायनेस्टी का एक क्वेश्चन था, एक चोला डायनेस्टी का क्वेश्चन है, मेरे को आर्ट एंड कल्चर आता ही नहीं, मतलब बस थोड़ा थोड़ा आता है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछे तो वो हो जाए, लेकिन इतना डिटेल में नहीं याद है। लेकिन आई नो कि उन्होंने क्या क्या काम किया, टेम्पल पे किया होगा, म्यूजिक, डांस, कॉइनेज या पैट्रोनेज दिया होगा, केव्स होगा, कुछ तो होगा। अब मेरे को याद था कि पाला और चोला दोनों में नटराजा वाला है, द्रविडियन आर्किटेक्चर का टेम्पल स्टाइल है, सेम चीजें मैंने दोनों आंसर्स में लिखी। अब ट्विस्टर्स का मेरे को पता था कि यार कुछ तो साइक्लोन रिलेटेड है, या तो साइक्लोन होगा या टॉर्नेडो होगा, उसके बेसिस पे मैंने आंसर लिखा था, लेकिन मैंने कुछ भी फैक्चुअली इनकरेक्ट नहीं लिखा था, जितना मेरे को पता था और जितना करेक्ट हो सकता था उतना ही मैंने लिखा था। तो ये है कि तुमको अगर समझ में आ गया ना किससे क्वेश्चन है तो छोड़ने की जरूरत तो नहीं है। आसपास का लिख सकते हैं। हाँ, मतलब गलत नहीं लिखना है लेकिन आसपास का लिख सकते हो। थैंक यू सर। Main specific notes after prelims or before prelims? ये डिपेंड्स अपॉन द टाइम। जैसे मेरे साथ था कि मेरे को कॉलेज के साथ करना था तो मेरे नोट्स नहीं बने हुए थे, तो आई यूज टॉपर्स नोट्स, एक महक जैन मैम करके हैं, उनके शॉर्ट नोट्स हैं बहुत छोटे छोटे 25 पेजेस के, तो मैं उनको प्रिंट कर लेता था, मैं उसी के ऊपर वैल्यू ऐड कर लेता था कि यार इन्होंने ये पॉइंट लिखे हैं,
मैं इसमें ये पॉइंट और लिख सकता हूँ। या अभी लास्ट ईयर आयन जैन सर के कीवर्ड बेस्ड नोट्स आए थे, तो उसमें उन्होंने कुछ नहीं लिख रखा, उन्होंने सिर्फ कीवर्ड्स लिख रखे, एक वर्ड लिख रखा है, ताकि उनको ये वर्ड्स याद रहे कि जब भी मैं एग्जाम में जा रहा हूँ तो ये वर्ड ना भूलूं, इसी वर्ड से मैं पूरा पॉइंट बना सकता हूँ। तो वो रहना चाहिए। बाकी यार वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम पे अगर टाइम है तो प्रीलिम्स के पहले ही बनाना स्टार्ट करो। एटलीस्ट कुछ कुछ सब्जेक्ट्स के तो बना सकते हो, जैसे पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन सब के तो बना लो, क्योंकि मतलब बाद में जाके भी तुमको अगर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में तुम नोट्स बना रहे हो तो बहुत टाइम वेस्ट होगा, बहुत टाइम वेस्ट। इसीलिए तो मैं टॉपर्स नोट्स यूज कर लेता था कि भाई मेरे से नहीं बनने वाले, और उतना टाइम है नहीं कि मैं बैठ के लिखूं फिर रिवाइज करूं उनको। इससे अच्छा किसी और ने बना रखे हैं, मेहनत करी है उन्होंने, मैं उसी को यूज कर लेता हूँ। मतलब कहाँ पे अवेलेबल है वो शॉर्ट नोट्स? देखो हर साल क्या होता है ना, टॉपर्स अपने टेलीग्राम चैनल्स बनाते हैं, तो तुमको उनके स्कोर्स देखो, तुम्हें जो सही लग रहा है अब उनके चैनल्स पे जाओ, वो नोट्स अपलोड करते हैं, तुम डाउनलोड कर करके देख लो, अगर तुम्हें सही लगते हैं तो उसको यूज कर सकते हो। जैसे मैंने सजेस्ट किया, एक तो महक जैन मैम है 2021 पास, 2021 की है, ऑल इंडिया रैंक 17 है शायद, और लास्ट ईयर आयन जैन सर है 2023 वाले। हाँ, तो इनके नोट्स देख सकते हो, ये गूगल करने पे भी मिल जाएंगे वैसे तो, वरना टेलीग्राम पे सर्च मार लेना उनका नाम। ओके सर 2024 के टाइम में आपका कोई पार्ट छूटा था पेपर का, तो पूरा कंप्लीट हो गया? या मेरा पेपर 2 एंथ्रो के पेपर 2 में छूटा था थोड़ा सा, बाकी किसी में कुछ नहीं छूटा, बस एसए में थोड़ा सा छूटा था। अब इमेजिन कर लो कि इतनी स्पीड बढ़ाने के बाद भी मेरा एसए में छूट रहा था, जिसमें सबसे कम लिखना होता है। तो वही है कि यार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सबकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मेरे को एसए से बहुत डर था, क्योंकि मेरे को लगता था क्रिएटिव हूं नहीं मैं लिखने में, तो इसीलिए बोल रहा हूं मैं कि मेंस की लेके प्रैक्टिस बहुत करो भाई, इनर्शिया मत रखो। यार एथिक्स तो मैंने क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन किया था, उसमें मैंने कवर कर लिया था। उसके बाद में क्या हुआ कि जैसे ही आगे बढ़ते गया ना, तो टॉपर्स की कॉपीज देखता रहा, क्योंकि एथिक्स में बहुत ज्यादा स्कोर्स आते हैं कुछ कुछ टॉपर्स का। तो जैसे मैं सजेस्ट कर रहा था ना महक जैन मैम के बहुत अच्छे स्कोर थे एसए और एथिक्स दोनों में, तो मैंने उनके नोट्स देखे थे, उनके नोट्स से मैंने चीजें उठाई, मेरे को समझ में आने लगे। एथिक्स में ऐसा रहता है यार कि समझ में आने लगे ना तुम्हें कि क्या लिखना है, फिर तुमको नोट्स भी नहीं चाहिए, तुम बना सकते हो चीजें। और केस स्टडीज का तो उतना कुछ डिफिकल्ट रहता नहीं है। मैं सजेस्ट करूंगा कुछ कुछ नए नए टॉपर्स जो भी तुमको दिखते हैं, एक तो आदित्य सर हो गए लास्ट ईयर वाले, उनकी कॉपीज देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि कैसे अप्रोच करना है। और एक टेम्पलेट बना के रखो, मतलब अगर केस स्टडी भी सॉल्व कर रहे हो तो एक टेम्पलेट होनी चाहिए, ताकि उससे जल्दी हो जाए। वरना जब तक पेपर करने जाओगे ना, केस स्टडी में बहुत टाइम लग जाता है और सेक्शन ए इग्नोर कर देते हैं। मैंने क्या किया था कि मैं सेक्शन ए पे ज्यादा फोकस था, क्योंकि केस स्टडीज में हमें लगता है हमारी एथिकलिटी टेस्ट हो रही है, लेकिन सबको पता है पेपर में लिखना है तुम्हें, तुम सेम ही आंसर सब लिखोगे। केस स्टडीज में आंसर चेंज होते ही नहीं। सेक्शन ए है जहां पे तुम अपने आंसर्स लिखते हो, तो उस पर ज्यादा फोकस करो। और आई थिंक कि इसी की वजह से मेरा स्कोर जंप हुआ है, एंड आई स्कोर्ड 119 इन एथिक्स दिस टाइम। यार मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में तुम ऐसा करो, टॉपर कॉपीज देखो, ठीक है, आंसर्स पढ़ लो उनके पूरे। उसके बाद में अगर तुमको कोई आंसर्स प्रैक्टिस करना है ना, या तो ऐसा करो कि जो तुमने टॉपर कॉपीज देखी उसी में से एक क्वेश्चन पकड़ लो और उसी को लिखो। अब तुम्हें बेसिक फॉर्डर तो है तुम्हारे पास कि तुमने कॉपी देखी थी, तो उससे थोड़ा सा कंटेंट आएगा, थोड़ा सा कंटेंट खुद से भी आएगा कि तुमने कुछ तो पढ़ा है, तो उसके बेसिस पे तुम लिखना स्टार्ट करो, धीरे धीरे करके बिना देखे लिखना स्टार्ट करो। लेकिन बस ये होना चाहिए कि तुमने वो टॉपिक पढ़ा हो, ये, क्योंकि वरना फिर डिमोटिवेट हो जाओगे तुम कि भाई इतना खराब आंसर लिख रहा हूं मैं, अब मन नहीं कर रहा, अब नहीं लिखूंगा कभी। तो वो नहीं करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। और मतलब ऐसा है कि टाइम बाउंड मैनर में थोड़ा बाद में करना, थोड़ा स्टार्टिंग में ऐसा करो कि अगर 10 मार्कर भी लिख रहे हो तो टाइम लेके लिखो, क्योंकि तुमको ना तब पता चलेगा कि तुम कितना अच्छा आंसर लिख सकते हो। तो उसको तुम बेसिस बना के फिर बाद में टाइम इंप्रूव करना, वरना तुम्हारा अभी तुम टाइम को लेके करोगे तो तुम बस पॉइंट लिख दोगे, उतने काम के ना तो पॉइंट होंगे ना इंट्रो बॉडी कंक्लूजन उतना अच्छा लगेगा। तो उसके लिए पहले तो आंसर की क्वालिटी सही करो, उसके बाद में टाइम पे इंप्रूव करने पे फोकस करना। चलो रिवीजन के पास भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, नोट में सब हो जाता है बट रिवीजन बार बार नहीं कर पाते, उधर भी नर्सिया। यार रिवीजन के लिए तो ऐसा करो कि एक दिन अलग से रखो,
तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि इस दिन मेरे को सिर्फ ये रिवाइज करना है। जैसे अभी प्रीलिम्स आ रहा था तो मैं प्रीलिम्स का पढ़ रहा था वापस से, तो मेरा यही फोकस था कि मैंने एक बार ये कर लिया है, अब मेरा एक दिन का टारगेट है कि आज मेरे को सिर्फ रिवाइज करना है जितना भी मैंने पढ़ा है। तो मान लो मैंने साइंस एंड टेक एंड इकोनॉमी पूरा पढ़ लिया है, तो मेरे को अब जल्दी जल्दी रिवाइज करना है। तो मैं टाइम निकाल के रखता था उसके लिए अलग से कि 5 घंटे में मेरे को साइंस एंड टेक पूरा रिवाइज करना है। अगर 1 घंटा भी ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब कि मैं लैप्स कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। और उसके बाद में अब मेरे को इकोनॉमी भी उसी दिन करना है, तो उसमें से टाइम निकाल नहीं सकता मैं, तो फिर ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा उस दिन, क्योंकि टारगेट तो पूरा करना है। सर ऐसे के पेपर में बहुत रेंज ऑफ मार्क्स आते हैं, तो ऐसे में मैंने देखा है पेस्टल अप्रोच होती है कि हम पॉलिटिक्स सोशल इन कॉन्टेक्स्ट में लिख दे सारा, तो उसमें मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो क्या अप्रोच होनी चाहिए ऐसे कि हम स्ट्रक्चर ऐसे करें आंसर को कि 140+ हम स्कोर कर पाए? सॉरी यार, मैं नहीं सजेस्ट कर सकता, क्योंकि मैंने तीनों अटेम्प्ट्स में बहुत लो स्कोर किया। आई स्कोर 99 इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, 94 इन माई सेकंड अटेम्प्ट एंड थर्ड अटेम्प्ट 101 है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि पिस्टल मत करना, क्योंकि मैंने पहले 2 अटेम्प्ट्स में पिस्टल ही किया था। एक और सजेशन है कि एग्जाम्पल्स जो यूज करते हो, तुम्हें लगता है कि कोई और नहीं कर रहा होगा, लेकिन यार सब करते रहते हैं, कुछ नया लाओ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे मेरा एक दोस्त है मेरे साथ अटेम्प्ट दे रहा था, प्रांजल, वो विक्रम ग्रेवाल सर के एसेस पढ़ के वो बहुत मोटिवेटेड था कि मेरे को कुछ अलग लिखना है। तो वो क्या करता था, जॉर्ज ऑरवेल है, उनकी नॉवल है, उसके बारे में कुछ लिख दिया, या फिर कोई फिलोसफी है, सिसिफस की स्टोरी है, उसके बारे में कुछ लिख दिया। तो ऐसे कर करके ना नया कंटेंट लाओ। सेम चीजें कि भाई हमने ये ग्रीन रेवोल्यूशन कर लिया, या यही सेम एग्जाम्पल्स लिख लिख के मार्क्स नहीं आते। सर पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल्स हो सकते हैं? या पर्सनलाइज तो मत लिखो, उसको पर्सनलाइज नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि फिर वो है ना, ऑथेंटिक नहीं लगता। थोड़ा सा वो कोट करने लायक एग्जाम्पल्स लिखो। तो एथिक्स के पेपर में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? या एथिक्स में तो मैं ये बोलूंगा कि एक तो टाइम को लेके ध्यान में रखो, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट बराबर मार्क्स के होते हैं। केस स्टडीज 120, सेक्शन ए 130। और क्या करते हैं लोग, केस स्टडीज से स्टार्ट करेंगे, 1 आवर 45 मिनट्स केस स्टडीज को देते हैं। वो नहीं करना है, टाइम इक्वली डिवाइड करो। मैं तो कहता हूँ सेक्शन ए को थोड़ा सा ज्यादा दे सकते हो तो दो, क्योंकि क्या होता है कि सेक्शन ए में तुम बाद में लिखते हो ना उसको, फिर तुम्हारे पास 1-2 एग्जाम्पल्स आते हैं, सेम ही पॉइंट्स आते हैं, क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर से रहते हैं, तो फिर तुमको समझ नहीं आता कि डिफरेंशिएट कैसे करें। तो इसके लिए जरूरी है, मैं तो ये कहता हूँ कि सेक्शन ए से स्टार्ट कर लो, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी। अगर तुमने पहले केस स्टडीज से स्टार्ट करना सीखा है तो फिर प्रैक्टिस लगेगी कि सेक्शन ए से स्टार्ट करना है मेरे को। सेक्शन ए से स्टार्ट करो और क्वेश्चंस को पढ़ो। अब क्वेश्चन में क्या करना है कि मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा है, पहले तो या तो डेफिनेशन लिख सकते हो, या कुछ उसके रिलेटेड कि मतलब इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ये ऐसे कर करके कुछ जेनरिक से लिख दो। या फिर अगर तुम्हें कोई कोट याद आ रहा है, उसके बेसिस पे कुछ कोट याद आ रहा है कि ये थीम है, इंटीग्रिटी पे कुछ है, तो उसका कोई कोट याद आ रहा है, वो उससे स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद में बॉडी में ये लिखना है कि डिमांड जो पूछा है। अब ऐसा होता है ना, एथिक्स में समझ में नहीं आता लोगों को कि डिमांड क्या है, तो मैं तो ये करता था कि क्वेश्चन को जितने पार्ट्स में ब्रेक हो सकते हैं ना उतने में कर लो। कि मान लो कि एक में स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कुछ लिखा था कि इंटीग्रिटी इज नॉट दिस बट दिस, तो पहले मैं दिखाऊंगा कि इंटीग्रिटी इज नॉट दिस, उस पर 2-3 पॉइंट्स लिख दूंगा। इंटीग्रिटी इज दिस, उसमें 2-3 पॉइंट्स लिख दूंगा। फिर तुम पे अगर और कुछ लिखने को नहीं है, बेस्ट वे इज सजेशंस देना कि अगर कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तुम एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हो कि हाउ टू इम्प्रूव, या इंटीग्रिटी कैसे लाएं, वर्कफोर्स में कैसे इंटीग्रिटी लाएं, उसके लिए क्या प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, या कहाँ पे कुछ क्या किया जा रहा है, तो उसके बेसिस पे तुम कोट कर सकते हो और वहां से आंसर खत्म हो जाएगा। तो वो सेक्शन ए के लिए तो ये है। बाकी कोट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं कुछ कुछ, उसमें तो मैं यही करता था कि जो कोट रहता था उसको एक्सप्लेन करो, और उसके बेसिस पे या तो तुम उसको नेगेट कर सकते हो तो नेगेट कर दो थोड़ा सा, और फिर सजेस्ट करो कि ये कोट तुम अपनी लाइफ में या करंट इवेंट्स में कहाँ पे देख रहे हो, तो वो सब है। बाकी यार तुम ना टॉपर कॉपीज देखो, मैं तो यही बोलता हूँ। इसमें तो बहुत सारी टॉपर कॉपीज हैं, बहुत पीछे जा सकते हो। वैशाली मैम की कॉपीज हैं, आई थिंक बहुत पुरानी 2018 या 2019 बैच की। उसके बाद अभी महकजन मैम की कॉपीज हैं, श्रुति शर्मा मैम की कॉपीज हैं, आदित्य सर की कॉपीज हैं। इन सबको देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि एक आंसर राइटिंग स्टाइल अलग अलग है, लेकिन बोलना वही चाह रहे हैं और सब में आंसर सही लिखे हैं, तो उससे पता चलता है ना कि कैसे करना है। बाकी केस स्टडीज के लिए तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि एक थीम और टेम्पलेट बना लो, क्योंकि तुम वहां पे अगर सोच रहे हो ना कि एथिकल डायलेमास क्या है यहाँ पे और एथिकल इश्यूज क्या है, तो बहुत टाइम लेगा। उससे अच्छा है कि तुम एक नोटबुक में लिख के रख लो कि ये एथिकल इश्यूज, एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स में ये एथिकल इश्यूज होते हैं, ये डायलेमास होते हैं,
वर्क स्पेस में ये एथिकल इश्यूज ये डायलेमा होते हैं, तो तुमको याद आएगा कि हाँ ये एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, मेरे को ये इनमें से कुछ जो यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो उससे टाइम बच जाएगा। और फिर स्टेप्स में भी यही है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और जो भी तुम सजेस्ट कर सकते हो वैसे करके, तो एक पैटर्न बना लोगे ना तो उतना सोचना नहीं पड़ेगा, वरना केस स्टडीज में बहुत टाइम लगता है क्योंकि लंबी आती हैं और पढ़ने में टाइम चला जाता है। यही है सर इंटरव्यू स्पेसिफिक गाइडेंस की उसमें क्या करना है, हमें ध्यान रखना है, नॉलेज टेस्ट ज्यादा होगी या फिर कैरेक्टर टेस्ट होगा, कैसे प्रेजेंट करना है खुद को? या इंटरव्यू में तो मैं यही बोलूंगा कि अभी उतना नहीं सोचना होता, मतलब बस एक वो है कि पर्सनैलिटी अपनी ठीक रखो, एटीट्यूड पे फोकस करो, मेंटल हेल्थ पे ध्यान दो, बाकी सब यार मेंस जैसे ही होता है ना। उसके बाद सर भी बताते हैं, सर सेशंस लेते रहते हैं कि क्या क्या करना है तुमको, और नॉलेज का उतना इशू होता नहीं क्योंकि तुम लोग मेंस क्लियर करके आए हो, बस थोड़ा सा रिवाइज करना होता है। और उस टाइम पे ना बहुत सारी कोचिंग्स ऐसी होती हैं जो तुम्हें उसके रिलेटेड कंटेंट देती है। मान लो तुम्हारा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और तुम्हें पता है कि तुम्हें नहीं आ रही हैं चीजें या तुम्हें भूल चुके हो तुम चीजें, तो कुछ कोचिंग्स हैं जो बुकलेट्स दे देती हैं तुम्हें कि सिर्फ इसको पढ़ लो, ये 1-2 क्लासेस करा देती हैं, तो उससे हेल्प हो जाती है। तो उतना टेंशन नहीं लेना होता इंटरव्यू का। बाकी मतलब वही है कि तुम अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करो, अपनी पर्सनैलिटी सुधारो, बाकी तो प्रैक्टिस हो ही जाता है यार। सर मतलब ना मेंस में ना इंटरव्यू में ब्लफ नहीं करना कोई भी आंसर कि नहीं आता और बस लिख रहे हैं। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि ब्लफ इंटरव्यू में तो नहीं करना होता, मेंस में भी नहीं करना होता, लेकिन वो है कि पेरिफेरल नॉलेज से तुम्हें कुछ पता है और तुम्हारे पास टाइम है तो वो लिख दो क्योंकि वो उससे रिलेटेड ही है। अब मान लो कि तुम्हें प्रॉब्लम्स नहीं पता लेकिन सॉल्यूशंस पता है इस चीज के, तो सिर्फ सॉल्यूशंस लिख दो, उतना कर सकते हो। लेकिन अगर बिल्कुल ही नहीं पता कि वर्ड क्या है, वेल एनल रेडिएशन बेल्ट लिखा है, अब तुम्हें नहीं पता कि वो क्या है तो फिर उसके बारे में कैसे लिखोगे, तो वो नहीं करना है। लेकिन अगर चीजें हैं जो तुम्हें समझ आ रही तो उसमें लिख सकते हो। थैंक यू सर। या मैंने ऐसे किया था इकोनॉमी के लिए, मैं क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन था तो वहां से क्लास नोट्स करे थे मैंने। उसके बाद में प्रीलिम्स के टाइम पे एक आती है बुक, मतलब ऐसी बहुत सारी कोचिंग्स निकालने लगी है अब तो बुकलेट्स, एक प्रहार करके आती है, आई थिंक वो 100 पेजेस के अराउंड होती है। तो उसमें क्या रहता है कि शॉर्ट नोट्स टाइप के बना रखे हैं उन्होंने, तो अलग अलग मेरे को ना नोट्स कंपाइल करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी उसमें। मैंने क्या किया था कि अपने नोट्स में जो जो चीजें थी वो उसमें अगर नहीं है तो मैं ऐड कर देता था उसमें। पहले जब मैंने पढ़ा था तब तो मिसप्रिंट्स बहुत थे उसमें, अब तो ठीक कर दिया उन्होंने शायद, तो वो जो गलतियां थी मैं ठीक कर देता था, उससे मेरे को भी पता चल जाता था कि यार ये भी याद करना है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे। और वो लेकिन वो प्रीलिम स्पेसिफिक थी, मेन स्पेसिफिक ऐसे अलग से कोई बुक पढ़ी नहीं मैंने। मेन स्पेसिफिक नोट्स के लिए तो ऐसा था कि जो सिलेबस में पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे इकोनॉमी में क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स एक है, ऐसे कर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, तो उन सब के बारे में नोट्स बना लो थोड़े थोड़े। मैं इसीलिए तो सजेस्ट कर रहा हूँ कि तुम टॉपर नोट्स देखोगे ना अलग अलग, उससे समझ में आएंगे कि तुम्हारे तरीका कौन सा है। मेरे से ऐसा था कि मेरे से ज्यादा चीजें पढ़ी नहीं जाती थी एक टाइम पे, इसीलिए मैंने महक जैन मैम के नोट्स यूज करे थे क्योंकि उसमें 3-4 पॉइंट्स ही लिखे हुए थे, लेकिन मेरे को पता था कि ओवरऑल क्या होता है, तो मैं एक्स्ट्रापोलेट कर लेता था और चीजें समझ में आती थी तो एक्स्ट्रा पॉइंट्स बन जाते थे बाद में। अब एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर में क्या क्या है, इनपुट्स है, एक्सपोर्ट है, फार्मिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, लैंड एक्विजिशन वाला है, ये सब है, तो ये सब के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। बाकी तुम अपने हिसाब से उसको बना लो, देखना है तो टॉपर नोट्स देख सकते हो कि कैसे कैसे बनाना है, लेकिन ये ट्राई करना है कि जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट रखो क्योंकि वो बार बार रिवाइज करना पड़ता है और एग्जाम के दिन तुमको 45 मिनट्स के आसपास मिलते हैं कि बस देख लो मैं अपने नोट्स मेंस के जस्ट पहले, तो उतना सा टाइम में तुमको अगर देखने के लिए चाहिए तो तब बना सकते हो नोट्स। सर आपने ऑप्शनल के साथ कोई साइट से जीएसपी कंप्लीट किया था या फिर सिर्फ ऑप्शनल ही पढ़ा था? नहीं, मैं साथ में चलाता था, जीएस और ऑप्शनल दोनों साथ में चलते थे मेरे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जीएस पढ़ के थक गए तो ऑप्शनल कर लो, और एंथ्रो में तो सब्जेक्ट्स भी इतने सारे हैं, अलग अलग टॉपिक्स है, सोशियो है, फिजिकल है, आर्कियोलॉजी है, ट्राइबल है, तो मजा आता था पढ़ने में कि कभी कभी मन किया तो फिजिकल पढ़ लेते हैं, इसमें मजा आएगा। क्योंकि जीएस पढ़ के बोर हो जाता है इंसान, अब एंथ्रो पढ़ के बोर हो गया तुम जीएस उठा लो कोई, तो वैसे करते मैं स्विच करते रहता था बीच बीच में, ऐसा नहीं था कि सिर्फ एंथ्रो कर रहा हूँ तो सिर्फ एंथ्रो कर रहा हूँ। बनाना चाहिए यार जीएस के लिए तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं बनाना है, टॉपिक वाइज बनाना है कि लैंड सीलिंग वाला हो गया तो प्रॉब्लम्स क्या थी, क्या क्या किया गया था, क्या सॉल्यूशंस है, इतना सा तुमको समझ में आना चाहिए बस।
एंथ्रो के लिए कर सकते हो कि क्वेश्चन वाइज फॉर्मेट में बनाओ, क्योंकि एंथ्रो में क्या होता है ना कि पीवाईक्यूज भी देखोगे तुम तो ऑलमोस्ट सिमिलर लाइंस पे रहते हैं, तो तुम आंसर्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में बनाओगे तो तुम्हारे पास ऑलरेडी एक टेम्पलेट बना रहेगा कि थोड़ा सा अगर क्वेश्चन चेंज्ड भी आता है तो मैं इस टेम्पलेट को यूज करके ऐसा आंसर लिख सकता हूँ। तो एंथ्रो के लिए ठीक है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, लेकिन जीएस के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ये जो सिलेबस वाइज है, टॉपिक वाइज है, वैसे बनाओ और टेस्ट दोगे ना तब तुमको पता चल जाएगा कि भाई टॉपिक वाइज बनाना ही बेटर है, क्योंकि आंसर बहुत रिजिड हो जाता है फिर। कोई और क्वेश्चन? हेलो यस सर, आपने पेपर 2 के लिए क्या किया था आंसर में? मतलब मेरे मार्क्स में 40 डिक्रीज हुए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा किस रीजन की वजह से। तो अगर आप पेपर 2 आंसर का बता सको इस बार, लाइक व्हाट वाज योर अप्रोच एंड हाउ यू स्कोर्ड? या मेरे भी डिक्रीज ही हुए इस बार, तो मेरे से सजेशंस लेना खराब है, क्योंकि आई स्कोर्ड 138 इन 2022 लेकिन इस बार 107 है, तो मैं सजेशंस नहीं दे सकता। मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि अगर तुमने भी मेरी तरह ब्लफ किया हो या ट्राई किया हो तो वो मत करना। नहीं सर, ब्लफ नहीं किया था, मैंने छोड़ दिए थे वो क्वेश्चंस। बट आई गॉट 86, आई गॉट 126 इन 22, दिस टाइम आई गॉट 86। सो या मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि सर से बात कर लेना तुम एक बार, सर बेटर गाइड कर पाएंगे तुमको, से गर्गी है। ओके, थैंक यू। वेलकम सर। आर्ट एंड कल्चर से मेंस में 2-3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पढ़ना बहुत ज्यादा रहता है, अपनी ज्यादा पढ़ा नहीं फिर शायद। या उसमें ऐसा होता है ना कि एक टेम्पलेट होती है, आर्ट एंड कल्चर का है कुछ भी तो ऐसा होगा कि या तो उससे रिलेटेड होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कि टेम्पल्स बनाए, केव्स हैं, पेंटिंग्स हैं, डांस है, म्यूजिक है, तो ये सब के बारे में ना थोड़ा थोड़ा तो पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में भी आएगा। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। अब साउथ इंडियन जितने भी द्रविडियन है तो थोड़ा थोड़ा तो सबके बारे में पता होता ही है। बस यही है कि मतलब उतना नहीं है कि तुमको हर चीज याद करनी पड़ेगी। तुम क्वेश्चंस देखोगे ना तो मेन डायनेस्टीज से ही आते हैं, गुप्तास से हैं, चोलास से आएंगे, पल्लवास से आएंगे, यही मेन है। तो इनका थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। ऐसा नहीं था कि मैंने जब आंसर्स लिखे थे तो मेरे को याद नहीं थे, मेरे को टेम्पल्स के नेम याद थे, मैंने एग्जाम्पल में टेम्पल के नेम्स लिखे थे। अब कोई डांस हो गया या कोई स्कल्पचर था तो वो लिखा था। तो मतलब थोड़ा थोड़ा तो रहना चाहिए कि मतलब तुम अगर जेनरिक पॉइंट लिख रहे हो, बाद में सब्सटैंशिएट करने के लिए एक एग्जाम्पल दोगे, वो करेक्ट होना चाहिए। तो उतना तो मतलब थोड़े से, अगर तुमको पूरे वास्ट नोट्स नहीं बनाना है, इतना बना लो कि पल्लवा में ये चीजें थी 4-5 पॉइंट, चोलास में ये था 4-5 पॉइंट, एवोल्यूशन, कॉइन का एवोल्यूशन कैसे हुआ 4-5 पॉइंट, बस ऐसे ऐसे करके बना लोगे तो ज्यादा पेजेस लगेंगे नहीं और वो हो भी जाएगा जल्दी खत्म। डायनेस्टी वाइज उसका नोट्स बनाना या आर्ट वाइज, जैसे डायनेस्टी वाइज चोला पल्लवा बनाना, लिटरेचर में डायनेस्टी का बोल रहा है तो ऐसे बनाना। ये वो तुम पे डिपेंड करता है, क्योंकि तुम अगर उसको रिवाइज कैसे भी बनाओ, तुम उसको अगर रिवाइज करोगे ना तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि लिटरेचर वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो तीनों का एक एक उठा के पॉइंट, अगर लिटरेचर का क्वेश्चन आया और तुमने डायनेस्टी वाइज बनाए थे तो भी तीनों का एक एक पॉइंट उठा के तुम लिख दोगे आंसर। तो मतलब तुम्हारी उसके हिसाब से तुम देख लो कि कैसे बनाना है, बस ये है कि याद होनी चाहिए चीजें। सर पॉलिटी में एक मतलब ये होता है, मतलब मेरे को एक क्वेश्चन था, जो हम लोग केस स्टडी करते हैं, राइट, केस स्टडी इन द सेंस जो जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट की या जो भी है, तो हम लोग जब एक क्वेश्चंस मतलब हम लोग को मिलता है तो मतलब जहां तक हमारे जो मैं जहां से जीएस कर रहा हूँ, हमारे टीचर ने बोला था, प्रोफेसर ने, कि उसको उसके साथ लिंक करना है। लाइक कोई भी आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो केस स्टडी मतलब जो भी जजमेंट है लिंक करना है। लेकिन सर जो हम लोग जो जजमेंट जो भी है, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या जो भी है, राइट, लाइक पुट्टा स्वामी जजमेंट, तो जजमेंट सर बहुत बड़ा होता है सर। तो कैन यू लाइक टेल मी लाइक हाउ वी कैन लाइक मेक इट इन अ शॉर्ट एंड लिंक अप विद द आंसर्स? मतलब जजमेंट बड़ा होता है इन द सेंस कि पुट्टा स्वामी में ये बोला था, सर बहुत मतलब वो पूरा मतलब अगर लिंक करने जाएंगे तो पूरा ऐसे नहीं करना होता। जजमेंट सिर्फ सब्सटैंशिएट करने के लिए ही रहती हैं कि कोर्ट ने ऐसे बोला है। अगर तुम प्राइवेसी के बारे में कुछ लिख रहे हो तो सिर्फ ये बोल दोगे ना कि पुट्टा स्वामी केस में भी यही बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसे करके मेंशन कर दोगे। या अभी नया एक केस आया था एमके रंजीत सिंह केस जो एनवायरमेंट से रिलेटेड था, तो उसमें उतना एक्सपैंड नहीं करना होता, एक लाइन ही लिखनी होती है अनटिल अनलेस अलग से पूछा है कि राइट केस लॉज एक्सप्लेनिंग दिस जो अभी बीच में क्वेश्चंस आए थे 2023 में आए थे शायद,
तो अगर एक्सप्लिसिटली नहीं पूछा है तो याद रहना चाहिए, लेकिन उसको एक्सपैंड नहीं करना है, बस एक लाइन लिख दो कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है जो इम्पोर्टेंट है। मतलब एक ही लाइन लिखना हाँ, है। हाँ, हाँ। बट अगर एक्सप्लिसिटली पूछे पूरा वो मतलब जजमेंट, तब नहीं, तब भी जजमेंट नहीं पूछेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला वही पूछेंगे। तो मान लो अगर तुमसे पूछ लिया कि एनवायरमेंटल जजमेंट्स क्या क्या बताई हैं सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसमें तुम जैसे अभी ये एम के रंजीत सिंह वाला जो है, तो उसमें ये बता दोगे कि आर्टिकल 19 के अंदर और आर्टिकल 21 के अंदर, दोनों के अंदर आ रहा है, तो वैसे वैसे करके लिखना है। लेकिन वो केस किस बारे में था वो सब जानने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, या थैंक यू सर। सर आपने करंट अफेयर्स के लिए कोई नोट्स बनाया था? या मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ता था तो प्रीलिम्स स्पेसिफिक मैंने ऐसे किया था कि जो भी न्यूज़ में मेरे को लग रहा है कि प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, तो मैं क्या करता था, वो वन लाइनर नोट्स बनाए थे मैंने न्यूज़पेपर से उठा के, कि किसी स्पीसीज का नाम आ गया, जाइंट अफ्रीकन स्नेल या ऐसे कुछ कोई स्पीसीज है, वो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है, तो वो स्पीसीज का नाम आ गया तो मैं सीधा उसको लिख लेता था कि ये इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, पीवाईक्यूज देखोगे तो पता चलेगा ऐसे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। तो मैं ऐसे ऐसे करके वन लाइनर्स नोट बनाता था न्यूज़पेपर से, सिर्फ प्रीलिम स्पेसिफिक या एग्जाम्पल कोट करने लायक। 9 नोट्स करंट अफेयर्स। हाँ, मैं फोन में बना लेता था उसको, मतलब मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को कि जैसे ही न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो फोन निकाला, गूगल कीप था, गूगल कीप में मैं बस टाइप कर देता था कि क्या है, ये बस ऐसे लिखा हुआ था, जाइंट अफ्रीकन स्नेल इन्वेजिव एलियन स्पीसीज, तो बस वही वैसे ही लिख रखे थे मैंने, एक लाइनर दो लाइनर, ताकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन कुछ पूछते हैं तो वो बता सकूं मैं। बाकी ऐसे करंट अफेयर्स के लिए मैं ये करता था कि मंथली नहीं करता था मैगजीन्स, ईयरली कंपाइलेशन आते हैं पीटी 365, मेंस 365, मैं सिर्फ वही यूज करता था कि अगर मेरे को मन है कि मेरे को कोई करंट अफेयर्स मैगजीन करनी है तो मैं उसमें से क्या करता था कि गूगल डॉक्स खोला, कॉपी पेस्ट कर करके जो भी काम की चीजें मैं सीधे अपने नोट्स बना लेता था उससे, और वापस उसको खोल के नहीं देखता था कि सिर्फ अपने नोट्स जितने मैंने छोटे कर लिए कि जो डायरेक्ट पूछा जाए वही लिखना है। वो तो सेंटेंसेस बना के पूरा पैसेज लिखते हैं, उनसे तो हमको मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ पॉइंट वाइज लिखना है कि भाई ये पूछ सकते हैं, ये लिख लिया मैंने, और फिर मैं उसको प्रिंट करके रिवाइज करते रहता था। एक्सक्यूज मी सर। यस सर मंथली कौन सा मंथली मैगजीन यूज करते थे? मैं विजन वाला करता था, लेकिन मैं मंथली नहीं करता था, मैं ईयरली जो आता है पीटी 365 और मेंस 365 सिर्फ वही यूज किया था। मॉडर्न हिस्ट्री फॉर मेंस, यार उसके लिए तो वही है कि मतलब बेसिक स्पेक्ट्रम से एक बार कंप्लीट कर लोगे ना, उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। उसके बाद एक बार पीवाईक्यूज देखोगे तो तुम्हें समझ में आएंगे, 3-4 थीम्स ही है जिससे ज्यादा पूछते हैं, कि या तो ये हो गया कि तुम ट्राइबल रिवोल्ट के बारे में बता दो या पेजेंट रिवोल्ट के बारे में बता दो, इनमें से कुछ बता दो, या फिर कोई पॉलिसीज जो चेंजेस हुए, लॉर्ड कर्जन ने क्या किया या कुछ ऐसा, या गांधी जी के बारे में या पर्सनालिटीज के बारे में। तो उसमें ना तुम 4-5 पॉइंट बना के रखो, उससे डायरेक्ट हेल्प होती है। और अगर तुम्हें अभी मुश्किल लग रही है ना, मैं सजेस्ट करता हूँ महक जैन मैम के मॉडर्न हिस्ट्री वाले नोट्स खोल के देखो, तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और चीज की, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट सब कवर्ड है 30-40 पेजेस में। सर आप जो मेल्स 365 और पीडी 365 ये तो मतलब कौन कौन से साल के, फॉर एग्जांपल आप 24 में जो अटेंड किए तो आप 23 और जिस साल का आता है सिर्फ उसी साल का करना है, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं होता कि तुम एक्स्ट्रा चीजें पढ़ सको। ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी मैं तभी करता था जब मैं बिल्कुल बोर हो जाता था कि और कुछ नहीं करने का मन कर रहा है, तो कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इधर से उधर। चलो क्या 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 है? हाँ। पीटी 365 जो होते हैं उसमें कोई करंट रिलेटेड टॉपिक्स रहते हैं ना, उसमें वेब फॉरवर्ड से रिलेटेड और मेंस राइटिंग कैसे उसे किया जाता है वो पूरे दिए हुए रहते हैं। उसको कट डाउन कैसे करें नोट्स बनाने? ये उसमें ना बहुत ज्यादा लिखा रहता है और वो बहुत जेनरिक लिखा रहता है, तो तुम्हें वो चाहिए नहीं। तुम उसमें से बस पढ़ लो एक बार, और जो तुम्हें काम का लगे कि हाँ मेरे को ये याद करना है, बस वो याद करो और बाकी छोड़ दो, क्योंकि वो जेनरिक चीजें हैं, वो तुम खुद से भी बना के लिख लोगे। Sir, how did you learn the art of answer writing? आई लर्नड इट द हार्ड वे, क्योंकि मेरे से पेपर ही कंप्लीट नहीं हो रहे थे भाई, इनर्शिया इतना ज्यादा था। इसीलिए तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ तुम लोगों को कि तुम लोग स्टार्ट करो जल्दी।
वो सारी गाइडलाइंस होती हैं उनके पास, यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड दोज गाइडलाइंस, ठीक है। आई मीन वेगनेस कैन बी एक्सक्यूज्ड, प्राउड कैन नॉट बी, ठीक है। करंट का मैं अगर थोड़ा सजेस्ट करूं अपने एक्सपीरियंस से, यू कैन मेक एन एवर नोट काइंड ऑफ थिंग, अपने कंप्यूटर पे जो भी है 2 पार्ट्स बना लो, इंडिया हो गया, वर्ल्ड हो गया, ठीक है। तो इंडिया में जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी जो कुछ भी आ रहा है उसकी फाइल अलग से बना लो। तो ज्योग्राफी में ट्रेड है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन प्लानिंग, रिसोर्सेज, फिर उसकी सब फाइल अलग से बना लो। जो कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है उस फाइल के उस चैप्टर में, मान लो एग्रीकल्चर में आप जोड़ते रहे, यू हैव टू वेरी कॉशियस कि जो नया फैक्ट है वो कहाँ इंसर्ट होना है उन पॉइंट्स में, उतनी बार रिवीजन होता रहेगा। लेट अस से 40 पॉइंट्स आपको मिल गए एग्रीकल्चर में, लुक एट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, उनमें से 2, 3, 4 पॉइंट्स तो कॉमन होंगे इंट्रोडक्टरी, पर हर आंसर में 10, 12, 15 जो रेलेवेंट पॉइंट है वो आपको समझ होनी चाहिए, एंड दैट विल डिसाइड योर स्कोर। बेहतर है कि अगर आप 2, 3, 4 पार्टनर हैं तो काम आसान हो जाएगा, अकेले के लिए ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। एक बंदे ने हिस्ट्री के बारे में पूछा था, नाश हो इतिहास का, संग से समुद्र बह गए, मर गए वे लोग, रोने के लिए हम रह गए, शाहजहां, बाबर, हुमायूं और अकबर आप था, कौन था बेटा न जाने कौन किसका बाप था। हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, खासतौर से अब जो साउथ इंडिया की तरफ ट्रेंड बढ़ रहा है, चोला है, चेरास है, पांड्यास है। मुझे आज ही लोग बता रहे थे अच्छा मैंने एंशिएंट इंडिया कर लिया, मैंने उनको 2 चीजें पूछी, अच्छा पंपा, पूना, रन्ना कौन थे? तो दूसरा क्या पूछा था? टिकट हो गई जो मणि में, मैं आम आस्किंग अबाउट संगम लिटरेचर, आपने एंशिएंट अगर कर लिया, संगम नहीं किया तो गड़बड़ हो गया। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, एनसीईआरटी ने भी जो है मुगल और वो फिलहाल 7 से हटा दिया, 9, 10 में जोड़ सकते हैं, बट योर एम्फेसिस नाउ शुड बी मोर ऑन साउथ। विजयनगर एम्पायर इंपॉर्टेंट हो सकता है, चोलास इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पांड्यास, चेरास, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। एम्फेसिस थोड़ा बदल जाएगा, पर हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। So sir has very honestly explained in brief what he could, ठीक है, and hopefully he will be getting MP। तो MP में ऑलरेडी अक्षांश और श्रेयांश जो हैं हमारे पास, अक्षत और श्रेयांश ऑलरेडी हैं, so I wish that we have a whole team working in MP and whole of Central India we can easily capture that way, हमारा स्कूल का काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अमित जी को दुआएं हमारी, थैंक यू, ठीक है, गॉड ब्लेस। आइए।